Hello dear students, those who are ready to prepare for NTSC and later on you are not interested to go on to the engineering or medical side, but if you are interested to go on to the administrative sides or you want to go for the NDA, these things are very useful. This part of general study and particularly of history, and in history it is democratic politics. Today we want to go for the study of this is the tale of Poland. Yesterday we studied about that was Chile, and today we will go for the Poland, and this is the great amazing kind of story which we are going to study or learn. If you see that Poland, तो पोलैंड का नाम लेते ही वैसे तो आपको पता लगता होगा that it is 1939. Nazi Germany was there, and Nazi Germany under the leadership of Hitler, जब उन्होंने पोलैंड पर अपना अधिकार कर लिया, invaded the Poland, that time it was the second world war that get started out. और उस पर मैं बहुत लंबा लेक्चर आपका लूँगा later on, but today's focus is that's the democratic establishment in Poland that we want to study. बहुत लॉजिकली चलेगा. मैंने आपको ये चीज़ कल भी बताई थी कि जो स्टडी ऑफ जनरल स्टडीज़ या स्टडी ऑफ हिस्ट्री है ना, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. सो पोलैंड इट इज़ अ कंट्री दिस इज़ द कंट्री इन सेंट्रल यूरोप. This is the country in Central Europe. And you see, मैं थोड़ा सा यदि फिगर बना दूँ इसके लिए तो आप ये देख पाएंगे बहुत आसानी से that this is going out to be like this and this one there. This is Poland. And here it is Warsaw, the capital of the Poland. And visualize it. On this side you say that this is going out to be as a Germany, and on this side these are the USSR countries that time. United States of Russia, वो countries यहाँ मिलेंगे, Czechoslovakia यहाँ मिल जाएगा आपको, and it is Germany here. It is going out to be as a Germany here. But if you visualize on this side, this goes out to be as Baltic Sea. This is Baltic Sea. And if you say that this is going to be as a Gulf of Baltic, we call it to be as either the Gulf of Baltic, or many times it is also be known as Gulf of Gdansk. Gulf of Gdansk. This Gdansk is a very important city, and where it is placed, so this Gdansk is placed over here. So the very first conclusion which you students can draw about the city of Gdansk, that it is near to the sea and it is a seaport basically. Agreed? So what is going to happen, how we are going to follow the Gdansk, that you just watch here. This is Gdansk, this is Gulf of Gdansk, and what is happening, this is 1980. In 1980 it was Polish United Workers Party. Polish United Workers Party, it was ruling whom there? It was ruling the Poland. And ये वो जमाना था जब चूंकि आसपास पूरा का पूरा USSR है, तो ये जो पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है PUWP, इट वाज सपोर्टेड एंड बैक्ड बाय whom? बैक्ड बाय द माइटी USSR. वही पूरी तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है, और ये रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट है. और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके रूरल्स को, इसके जो लीडर्स हैं, उनको किसी भी हाल में डेमोक्रेसी से जो है उनका चयन नहीं होता है. वो एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं, और उनके लिए जितने भी आपके पास में पोलैंड का पॉपुलेशन है उसका उनको चूज करने में कोई रोल नहीं है. तो अल्टीमेटली इट इज़ अ डिक्टेटरशिप, इट इज़ अ वन पार्टी सिस्टम विच यू कैन कॉल देयर. तो बड़ी प्रॉब्लम्स थी, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, मिसमैनेजमेंट था, करप्शन था. व्हाट हैड हैपेंड 1990 में, देयर वाज अ फीमेल क्रेन ऑपरेटर. मजा आने लग जाएगा अब आपको. तो आपके पास शहर कौन सा है? द सिटीज ऑफ गडांस्क, एंड अनलॉफुली इलीगली एक फीमेल क्रेन ऑपरेटर थी, उसको उसकी नौकरी से क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है. सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. इन 1980 अ फीमेल क्रेन ऑपरेटर
अनलॉफुली, इलीगली उसको अपनी नौकरी से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो जो वर्कर्स थे उन वर्कर्स को बड़ा अजीब सा लगा, उन्हें फीलिंग इस तरह की आई, यार आज इसे निकाला है, हो सकता है अनलॉफुली कल हमें निकाल दिया जाए या कुछ और हो जाए। तो इट वाज अ फर्स्ट स्ट्राइक। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्ट्राइक कर देते हैं। और ये स्ट्राइक कहाँ होती है आपके पास में, ये स्ट्राइक होती है दैट विल बी इन गडांस्क। अब पहले समझिएगा कैसे याद रखना है। यार सिटी कौन सी है, गडांस्क। गडांस्क सिटी कहां पर है, सी पोर्ट है। सी पोर्ट पे होगा क्या, समझिए ना क्या होता होगा, बड़े बड़े कंटेनर शिपमेंट। अब उन शिपमेंट को या तो आपको लोड करना है या अनलोड करना है, और लोड और अनलोड करने के लिए जरूरत किनकी पड़ेगी, ह्यूज क्रेन्स की पड़ेगी। तो यहां वो जो क्रेन ऑपरेटर है फीमेल, उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और फिर क्या हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है। ये सारी कहानी कहां की है, 1980 की है। वर्कर्स यूनाइटेड हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो स्ट्राइक है ये कोई बहुत अच्छे तरीके से अभी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अब एंट्री है। क्या होता था, इसी जगह पर एक इलेक्ट्रीशियन है, सिंपल इलेक्ट्रीशियन है, उनका क्या नाम है, लेक वेलेसा उनका नाम है। तो एक इलेक्ट्रीशियन लेक वेलेसा उनका नाम है। 1976 में ही सेड कि भाई मैं अच्छा काम करता हूं, मेरे को इतना इतना काम करते हुए समय हो गया है, तो आई नीड द मनी। मेरा जो पैसा है, मेरे जो नौकरी की मुझे तनख्वाह मिलती है, उसको बढ़ा दिया जाए। तो इट वाज अ डिमांड ऑफ व्हाट, लेक वेलेसा ने 1976 में एक डिमांड रखी कि मेरा वेज बढ़ा दिया जाए, मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए। और इस डिमांड को देखते हुए इन्हें भी क्या कर दिया गया था 1976 में, उसी अनलॉफुल मैनर में, उसी इलीगल मैनर में टर्मिनेट कर दिया गया था। तो अब क्या होता है कि ये जो लेक वेलेसा है, ये इस स्ट्राइक में कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, लीड करना शुरू करते हैं। तो 4 साल पहले जिस आदमी को हटाया गया था, वो अब 1980 में आके, और ये बहुत पॉपुलर है, दैट फेलो इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फैक्ट। ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये बात करते हैं इन सपोर्ट ऑफ वर्कर्स। इज दैट क्लियर, बट नॉट इलीगली, लीगल मैनर में, लॉफुल मैनर में। तो जैसे ही लेक वेलेसा की एंट्री होती है, पंख लग जाता है स्ट्राइक को। लोग जबरदस्त, लोगों में क्या हो जाता है, एनर्जी आ जाती है, उत्साह आ जाता है, और स्ट्राइक जो है वाइड स्प्रेड हो जाती है। इतनी वाइड स्प्रेड हो जाती है कि जो आपकी गवर्निंग बॉडी है, पॉलिश, ये वाली पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, इसको झुकना पड़ता है। और 1980 में ही लेक वेलेसा की लीडरशिप में एक 21 पॉइंट प्रोग्राम एग्रीमेंट होता है, किस किस के बीच में, बिटवीन यू से यूनियन, यहां देखिएगा, यहां पे यूनियन किन की, वर्कर्स यूनियन वर्सेस कौन है आपके पास में, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। इनके बीच में 1980 में 21 पॉइंट प्रोग्राम एक एग्रीमेंट है। बट वो एग्रीमेंट किस चीज का है, पहले सुनिएगा। तो ये जो आपकी पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इसने क्या कर रखा था, जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। स्वतंत्र ट्रेड यूनियंस संभव नहीं थी कहां पर, पोलैंड में। तो सपोज वी आर द वर्कर्स, हम हमारी एक ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं, तो वो ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे हमारे हम कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी ट्रेड यूनियंस हैं। इन आवर कंट्री ऑफ इंडिया वी आर हैविंग भारतीय मजदूर संघ है, इंटक है, ये इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन जो आपके पास में पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है, वो जिस तरह से रूल करती थी, उसमें इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस का अस्तित्व नहीं था, वो लीगल नहीं थी। तो सबसे पहले लेक वेलेसा ने कहा कि हमें इजाज़त मिलनी चाहिए। ये जो 21 पॉइंट प्रोग्राम है आपका, जो एग्रीमेंट है, उसमें इनको सबसे पहले इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या ली, इजाज़त ले ली। और अब ये क्या हो गया, ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए लीगलाइज्ड हो गए। ठीक है, यहां से एक बड़ी ट्रेड यूनियन फॉर्म होती है, और उस ट्रेड यूनियन का क्या नेम है, देन यू कैन से दैट इट इज गोइंग आउट टू बी ए सॉलिडेरिटी। इतनी तेजी से पॉपुलर होते ही, समझिएगा, एक छोटा सा शहर है गडांस्क, वहाँ पे एक स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद में समझौता हो गया, समझौता होने के बाद में ये एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बन गया। लेकिन पोलैंड जैसे छोटे देश में भी ये जो सॉलिडरिटी आपका ट्रेड यूनियन बना है, इसके बहुत जल्दी से कितने मेंबर हो गए, लाख 2 लाख नहीं, 1 करोड़ मेंबर्स।
एंड यहां से आपको पता लग सकता है कि लेक वालेसा की पॉपुलरिटी या ट्रथ की पॉपुलरिटी कितनी बड़ी होती, बिकॉज दैट फेलो वाज जस्ट फाइटिंग फॉर द ट्रथ, दैट इट वाज माय राइट। मैं काम कर रहा हूं इतने समय से, तो जो मुझे मिलना चाहिए वो तो मिले ना। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? 1 करोड़ मेंबर्स। अब ये जब 1 करोड़ मेंबर्स थे तो इन्होंने कुछ खतरनाक काम शुरू कर दिए। मैं फिर से नाम ले रहा हूं, पीपुल्स, इट इज पोलैंड यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। अब ये जो पार्टी थी इसका वर्क कल्चर बहुत खराब था, करप्शन, मिसमैनेजमेंट। तो वो जो करप्शन है, वो जो मिसमैनेजमेंट है, उसके खिलाफ ये 1 करोड़ मेंबर्स जो हैं सॉलिडरिटी के, ये आवाज़ उठाते हैं। तो ये पूरी की पूरी पार्टी जो गवर्निंग बॉडी है उसको लगता है यार सब बेकार हो गया। तो हार्डली इन द स्पान ऑफ 1 ईयर, सिर्फ 1 साल में ही क्या लगा दिया जाता है पोलैंड में? मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? क्वेश्चन आएगा यहां से कि किस स्पान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। क्वेश्चन आएगा यहां से कि आपकी जो पहला आपके पास में इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन था उसका नेम क्या है? तो जो पहला इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन था उसका नेम क्या है? सॉलिडरिटी। किसकी लीडरशिप है? लेक वालेसा की लीडरशिप है। थे क्या वो? ही वाज सिंपली द इलेक्ट्रिशियन। एग्रीड? तो ये जितने भी इस तरह के आपके पास में इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन है वहां बहुत आसानी से अभी कर देंगे, बट अभी तो यहां फोकस कीजिए, कुछ जबरदस्त होने वाला है। अब जब मार्शल लॉ इंपोज कर दिया जाता है तो ये जो ट्रेड यूनियन का इंडिपेंडेंस है ये भी खत्म हो जाता है। नाउ यू से व्हाट इज हैपनिंग? अब एक लंबा सफर है 1981 से लेकर, कहां से? 1981 से लेकर 1988 का है। एंड इट इज 7 years स्ट्रगल। सब लोग, ये 1 करोड़ सॉलिडरिटी के मेंबर्स जो हैं वो 7 years का एक लंबा स्ट्रगल करते हैं। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग देयर? अब जाके 1998 में फिर से अगेन अ स्ट्राइक। एंड ये जो स्ट्राइक है इट इज अ ह्यूज स्ट्राइक, क्योंकि वो जो 7 साल से दबी हुई चीजें हैं, 7 साल से जो करप्शन है वो अब उसका भांडा फूट चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं। तो वो जो एक दबी हुई ज्वाला थी वो बाहर निकल के आती है और एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है, पूरे पोलैंड को वो हिला देती है। और अब क्या होता है? तो इट इज अप्रैल 1989। ये रहा। आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को और बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेंगे, मुझे पता है। यहाँ पर ये कंप्लीट आपकी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी अब सरेंडर कर देती है किसके आगे? 1988 की स्ट्राइक के आगे। और फिर से आपके पास में एक एग्रीमेंट है और अप्रैल 98 में अब पोलैंड में फ्री इलेक्शंस का एग्रीमेंट हो जाता है कि अब फ्री इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे। ये 89 अप्रैल में हुआ और आपके इलेक्शंस हुए। यू गेट सरप्राइज्ड आउट how many constituent assemblies are there? So 100 constituent assemblies हैं और उन 100 constituent assemblies में से 99 पर किसको? सॉलिडरिटी को विजय प्राप्त होती है। So out of 100 they are winning how many seats? Out of 100 seats they are winning 99 seats and you get surprised out over there। कमाल हो जाएगा। अक्टूबर 1990 में पोलैंड का प्रेसिडेंट जिसे चुना जाता है, पोलैंड की जनता जिसे चुनती है, फ्री इलेक्शन से जिसे चुना जाता है, वो कोई और नहीं था, वो 1976 में टर्मिनेट होने वाला एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन था। और उसका नाम क्या है यहाँ पे? तो आप कहेंगे कि वो नाम कुछ और नहीं है। दिस नेम इज व्हाट? लेक वालेसा। कई लोग कहते हैं ना इंस्पायरेशनल स्टोरीज। अरे यार, दुनिया में इतने इंस्पायरेशनल काम लोगों ने किए हैं कि आप मतलब यदि उनको पढ़ लो, पढ़ते ही नहीं है लोग। प्रॉब्लम इज सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए, ठीक है ना, कहीं जादुई चिराग मिल जाए। होता नहीं है, बस कहानियों में होता है ये हकीकत में नहीं होता है। आप यदि लेक वालेसा की पूरी स्टोरी को देखते हैं तो 1976 से लेकर 1990 तक जाती है वो। एंड इट इज गोइंग आउट टू बी ऑलमोस्ट 14 years का स्ट्रगल है। और उस स्ट्रगल में 81 से लेके 88 का स्ट्रगल तो अंडर मार्शल लॉ है। Is that clear in your mind? तो अब यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि यार इससे बड़ी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि एक इलेक्ट्रिशियन प्रेसिडेंट बन सकता है, वो भी किसका? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एशियन कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंट्री विच इज अ यूरोपियन कंट्री। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? और वो यूरोपियन कंट्री जिसके आसपास कौन है? जिसके आसपास जर्मनी जैसे कंट्री हैं,
छोटे मोटे नहीं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, उस साइड पे देखोगे तो आपको रशिया मिल जाएगा, इस साइड पे देखोगे तो चेक मिलेगा, स्लोवाकिया मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये फील हो गया होगा कि इफ यू आर डूइंग द वर्क इन अ राइट डायरेक्शन यू कैन गेट द सक्सेस। तो मैंने आपको दो स्टोरीज, दो जबरदस्त स्टोरीज सुनाई। यस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट व्हाट, दैट वाज द स्टोरी ऑफ चिली। Is that clear? Today I talked about, that is the story of what? That is the story of Lech Walesa. It is a story of Poland. अब छोटे छोटे से क्वेश्चंस मैं आपको करवाने हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी से करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ और इस स्पेस में हम क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ दैट एग्जामिनर्स ब्रेन जो है वो क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करता है। मैंने यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। लेक वेलेसा ये कहाँ से कहाँ चले, एन इलेक्ट्रीशियन, फिर एक ट्रेड यूनियन लीडर। तो यहाँ आप आसानी से लिख सकते हैं दैट इट इज़ 1990 एंड यू से दैट प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। एग्रीड? बात समझ आ गई यहाँ पे? चलिए मैं इस वाले पोर्शन को एक बार हटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ दैट you try to understand, you try to conclude that what informations I have given to you, and मैं फिर आप सबको कह रहा हूँ कि informations को याद रखने की कोशिश मत करिए। This is the wrong way। अधिकतर क्या होता है, लोग इंफॉर्मेशंस को, जिसको कहा जाता है ना छोटे शब्दों में, रटने की कोशिश करते हैं, और वो सिर्फ आपके इस हिस्ट्री पर या आपके सोशल स्टडी पर ही गलत नहीं है, इट इज़ रॉन्ग इन एवरी सब्जेक्ट। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार मैंने जब साइंस में पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैंने लोगों को कहते हुए देखा है पहले फॉर्मूले याद कीजिए फिर क्वेश्चंस करना, एंड इट इज़ एन एंटायरली रॉन्ग मेथड। अरे यार फॉर्मूले आपके पास हैं, फॉर्मूले को सामने रखिए और लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। और आप अपने उस रजिस्टर में से, अपनी नोट्स कॉपी में से क्वेश्चन करते समय फॉर्मूले जो है उनको यूज़ करते हुए चलिए। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 बार यूज़ करेंगे, 5वीं बार तो अपने आप याद हो जाएगा। तो आपने पूरा, मैं कह रहा हूँ कि इस पूरी पोलैंड की जो अमेजिंग टेल है, इसमें कुछ भी याद रखने की कोशिश नहीं करनी है। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। दिस इज एग्जाम्पल 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Name the ruling party. Name the ruling party of Poland in 1980, and you will have to give the answer. तो वापस से समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा था गडांस्क जो है हमारा वो सी सिटी है, एक पोर्ट सिटी है, वहाँ 1989 में स्ट्राइक हुआ था। और स्ट्राइक हुआ था उस समय कौन काम कर रहा था, तो इट वाज पॉलिश, ये रहा पी, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, वर्कर्स पार्टी। एंड डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, कोशिश ये कीजिए कि ये पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी था किस तरह का पार्टी, तो अपने आप याद रह जाएगा आपको। तो ये एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एंड ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है, इट वाज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। एक नाम ले रहा हूं आपके सामने, मिखाइल गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने यूएसएसआर को बाद में डिसमेंटल किया था, उससे पहले ये सारे के सारे जितने भी कंट्रीज थे, जिनमें बेलारूस आता है, जिनमें यूक्रेन आता है आपके पास में, जिनमें आपके पास में रूस इटसेल्फ आता है, इन सब का एक क्या था, ये यूनाइटेड थे और एक यूनाइटेड स्टेट्स बनता था सोवियत रशिया का। बहुत पावरफुल था, दो ही उस समय पावर सेंटर्स थे, वन वाज यूएसए एंड वन वाज यूएसएसआर। अब रुकना, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं जिसे कहते हैं कंपैरिजन। इज दैट क्लियर? दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई, वन वाज द स्टोरी ऑफ चिली एंड वन वाज द स्टोरी ऑफ पोलैंड। पहले बताइए कि चिली की पोजीशन कहाँ है, तो आप कहेंगे चिली वाज इन सदर्न अमेरिका। अच्छा, चिली पे भी आप बात कीजिए तो इट वाज नियर हुम देयर, किसके नजदीक था आपके पास में, सदर्न पैसिफिक ओशियन। लेकिन वहां पे इंटरफेरेंस किसका था, वहां इंटरफेरेंस यूएसए का था। इज दैट क्लियर? तो अब यदि कॉलम मैचिंग का आपके पास क्वेश्चन आता है, एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस इन जनरल आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव लेवल्स में पूछे जाते हैं, बिकॉज दीज आर मल्टी कंसेप्चुअल,
मल्टी कंसेप्चुअल, क्योंकि इनमें सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इनमें सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट है। तो आपने यहां लिखा चिली और यहां लिखा आपने पोलैंड, ठीक है। और ये आपका वन कॉलम है। अब आप इसको मैच करना है आपको इस जगह से, तो आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहां सामने बना के दे सकता हूं। यदि मैं आपसे ये कह दूं दैट हियर इट इज द वर्ड विच आई एम यूटिलाइजिंग, मिशेल ब्रेसलेट, मिशेल ब्रेसलेट, पूरा नहीं लिख रहा हूं बिकॉज यू आर नोन। यहां एक चीज लिख देता हूं आपके सामने, एंड दैट गोज आउट टू बी सिंपली नथिंग बट इट इज लेक वेलेसा। अब क्या होता है, पहले वो सुनिएगा। मुझे इस काम को करते करते आज करीब 28 ईयर्स हो गए हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद कन्फ्यूजन्स होते हैं, यार लेक वेलेसा थे तो प्रेसिडेंट यार, ये तो मुझे कंफर्म है। एक और चीज़ बच्चा कहता है, यार जो हमारी मिशेल ब्रेसलेट है वो थी तो प्रेसिडेंट, पर यार कन्फ्यूज़न ये है कि ब्रेसलेट प्रेसिडेंट जो थी वो चिली की रही थी, या ब्रेसलेट जो प्रेसिडेंट थी वो कहाँ की, पोलैंड की रही थी। तो इट विल बी ए ट्रबल, ये एक ट्रबल क्रिएट करेगा। अब इन ट्रबल से बाहर आने का एक तरीका है, और वो बहुत सीधा सा तरीका है आपके पास में, इतना आसान तरीका है जिसकी कोई हद नहीं। अरे यार आप पहले ये देख लीजिए कि जितने भी आपके अल्फ़ाबेट पास है ना, ब्रेसलेट, चिली, बी और सी, ये दोनों एक साथ ही हैं। तो ये ब्रेसलेट और चिली, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और जब दूर आओगे ना, LMNOP, ये दूर आ जाते हैं, देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास है। कहीं ना कहीं से एक प्रोसेस तैयार करना पड़ेगा आपको, और इस प्रोसेस को जब तक टीचर तैयार करेगा ना, तब तक किसका फायदा है, टीचर का है। मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ है, जैसे मैंने याद रखा हुआ है वैसे आपको बता दिया। अब आपने यदि मेरे प्रोसेस को कॉपी किया, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड। यू शुड हैव योर ओन मेथड, बिकॉज ये प्रोसेस मेरा है ना, तो ये मेरे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, क्योंकि आप मुझसे छोटे हैं ना। मेरा ब्रेन तो जंग लग चुका है यार, 50 साल का हो गया, आपका तो ब्रेन ये भी यंग है ना। आप ज़्यादा अच्छे मेथड से याद कर लें। आपके सामने एक क्वेश्चन बना दिया मैंने कि यार चिली के प्रेसिडेंट इट वॉज ब्रेसलेट, एंड ये पोलैंड के केस में इट इज़ लेक वेलेसा। चलिए एक और क्वेश्चन को यहीं से बना लीजिए। एग्जाम्पल 1 हो गया, ये मल्टी 2 हो गया, ये मल्टी कंसेप्चुअल था। किसी एक को रब कर देते हैं यहाँ से, तो मैं इस अपर लेवल को एग्जाम्पल 1 को रब करता हूँ और थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपके लिए, और अब एग्जाम्पल 3 पे जाता हूँ। और यहां आपको इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एंड दिस इज द क्वेश्चन जिसको आप जब करेंगे तो आपको पूरे दोनों के दोनों चैप्टर्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए चूंकि अभी पोलैंड बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है तो पहले यहाँ काम कर लेते हैं। 1980, 1981, मेरी इच्छा हो रही है वैसे इस तरफ सारी चीज़ें रब कर दूं तो आप कुछ देख ना पाएँ। मुझे पता है थोड़े दिनों बाद आप खुद कहेंगे सर फर्स्ट यू रब इट, फिर क्वेश्चन लिखिएगा ताकि हम कर दें उसे। तो सबसे पहले 1980, then it is going out to be as 1981, then it comes to be as 1988, then it comes to be as 1989, and then it goes out to be as what? This is 1990. And try to fill up कि यहाँ क्या क्या होने की कोशिश हुई। यहाँ सारी की सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, बट थोड़ा सा और यदि आगे की तरफ चलें तो मैं यहाँ फिलअप कर दूंगा कब क्या क्या होता है। तो 1980, चलिए ये वर्क विद मी। 1980 में आप मुझे कहेंगे दैट देयर इज अ पोर्ट सिटी गडांस्क, एग्रीड, एंड हियर इट वाज अ फर्स्ट स्ट्राइक, agreed. Then this goes out to be as 1981, it is martial law, agreed. After that, right from 81 to 88 it was a martial law, and it is second strike. And after the second strike, it is April 1989, April 1989,
you say that it is the free and fair elections get announced, and in October 1990 Mr. Lech Walesa elected as a president. ये एंटायर सीक्वेंस है आपके पास और आपके सामने मैंने लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये सब की सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता लग रहा है आपके मुस्कुराते हुए चेहरे कह रहे हैं। चिली के इवेंट्स के लिए मैं आपको कहता हूं कि चिली के इवेंट्स आप खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज अब हम सब्जेक्ट में एंटर कर चुके हैं तो मैं आपको कोई ना कोई काम दे के चला जाऊंगा। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब चीज़ों को किसी भी हाल में याद करने की कोशिश नहीं करनी, इन सब चीज़ों को सिर्फ समझने की कोशिश करनी है और मेरे साथ साथ आगे लेके चलते हुए चलना है। जब भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत फोकस करके क्वेश्चंस करने हैं आप सब लोगों को। चलिए, कल फिर मिलूंगा आपके साथ में और फिर एक नई अच्छी चीज के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।